की तरफ उठाएं। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। धन्यवाद उस खुदा का, हालेलुया। धन्यवाद उस खुदा का, हालेलुया। कल खुदा दी सोना का छाती करेगा कलाम। मैं कल खुदा दी सोना का छाती करेगा कलाम। एक मन होकर कहिए, जो मुड़िए ना इस घर को आसेवे। आइए सब मेरे साथ एक मन होकर कहिए, आई कदूस खुदा, मैं शुक्रगुजार हूँ आज के इस दिन के लिए जो तूने मेरी बरकत के लिए ठहराया। और खुदावन, मैं अपने आप को पूरे तौर से तेरे रूह के ताबे करता हूँ। हर वो चीज खुदावन जो मेरी जिंदगी में तुझे नापसंद है, वो आज तेरे कलाम की कुदरत से, तेरी हजूरी की कुदरत से वो मेरे जीवन को छोड़कर चली जाए। और आज की मीटिंग यीशु मसीह के नाम में मेरे जीवन के उस हिस्से को कुदरत से भरे जहां पर शैतानी कब्जा है। और यीशु के नाम में मेरे फाइनेंस से, मेरे कैरियर से, मेरे परिवार से, मेरी लाइफ से बोलो शैतानी कब्जा जाए। चाहे वो बीमारी की शक्ल में है, चाहे वो किसी गंदी आदत की शक्ल में है, बोलो यीशु मसीह के नाम से जाए। और आज की मीटिंग और आज का मैसेज मुझे डिलीवर करे, मुझे हील करे। यीशु के नाम में मैं जो कुछ सुनूं मैं उसे कबूल करने वाला बनूं। यीशु मसीह के जलाली नाम में ऊंची आवाज में बोलिए आमीन, हालेलुया। आप सभी तैयार हैं आज के खुदा के मुकद्दस कलाम के लिए? हालेलुया। आइए बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ खोलिए। अहबार की किताब उसका दूसरा बाब, उसकी हम पढ़ेंगे 13वीं आयत मुकद्दसा। अहबार की किताब उसका दूसरा चैप्टर, हम उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा को तलावत करेंगे। खड़े खड़े उसको जरूर। ओके। अहबार की किताब दूसरा बाब उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा जी यूं लिखा है, और तू अपनी नजर की कुर्बानी के हर चढ़ावे को नमकीन बनाना और अपनी किसी नजर की कुर्बानी को अपने खुदा के अहद के नमक, क्या लिखा है, अहद के नमक बगैर रहने ना देना। अपने सब चढ़ावे के साथ नमक भी चढ़ाना। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत रहे। सब बोलिए आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आज का मौजू बड़ा दिलचस्प है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की मुकद्दस बाबरकत बातों को आप सभी बड़े ध्यान से सुनोगे। एक चीज याद रखिए कि पुराना अहदनामा यहूदीइज्म को 5 कुर्बानियां चढ़ाने के लिए उभारता है, उनको तालीम देता है। कितनी बोलिए? 5 कुर्बानियां। पहली कुर्बानी क्या है? सोख्तनी।
دوسری قربانی کیا ہے؟ نظر کی قربانی. تیسری قربانی کیا ہے؟ سلامتی کا ذبیحہ. اور چوتھی قربانی کیا ہے؟ خطا کی. اور پانچویں قربانی کیا ہے؟ جرم کی. بائبل کے اندر ان پانچوں قربانیوں میں سے ایک ایسی قربانی کیا ہے جو ان چاروں سے بالکل الگ ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے وہ ہے نظر کی قربانی. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان چار قربانیوں سے بالکل الگ اس لیے ہے کیونکہ اس میں بلڈ نہیں بہایا جاتا، اس میں کوئی جانور قربان نہیں کیا جاتا. ہم نظر کی قربانی کا جب پڑھتے ہیں تو بائبل یہ کہتی کہ یہ قربانی خوراک پر مشتمل ہوتی ہے. اس قربانی میں خدا کی حضوری میں جب لوگ جاتے ہیں، اس قربانی میں وہ خوراک لے کر، میدہ لے کر، اور بائبل کہتی تیل لے کر، اور یہ خدا کے سامنے چڑھاوے کے طور پر ہوتا ہے. ایک چیز یاد رکھو، بائبل کے اندر بے شمار کووننٹس ہیں جسے اردو میں عہود کہا جاتا ہے، جو عہد کی جمع ہے. لیکن یہ سنیے کہ ان تمام کووننٹس کے بیچ میں سے دو ایسے کووننٹس ہیں جن کو بائبل کہتی کہ ایور لاسٹنگ کووننٹ، مطلب لافانی کووننٹ یا پھر ابدی عہد. اور آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے کووننٹ آف سالٹ، نمک کا عہد. بائبل میں بے شمار عہود کا ہم ذکر پڑھتے گئے، وہ سبھی ٹرانسفریبل نہیں ہیں، وہ سبھی ابدی نہیں ہیں، لیکن دو ان میں سے ابدی عہد ہیں. ایک ابراہیم کا عہد ہے اور دوسرا نمک کا عہد ہے. اس کی ڈیٹیل ہم آگے جا کر دیکھیں گے. یہاں پر بائبل یہ کہتی ہے کہ نظر کی قربانی میں ہم یہ پڑھتے کہ ان کو کچا میدا اور لکھا ہے تنور میں پکی چپاتیاں اور پھر اناج کی بالیں، یہ وہ لے کر خدا کی حضوری میں جاتے تھے اور خدا کے سامنے یہ چیزیں چڑھاتے تھے. تو وہ اس بات کا عہد یا اس بات کا نشان تھا کہ ہم اپنے اناج میں خدا کو شریک کرتے گئے، ہم اپنی مادی جو بلیسنگز ہیں ہم ان میں خدا کو حصے دار بناتے گئے. خداوند نے یہاں پر یہ کہا کہ تیرے تمام چڑھاووں کے ساتھ نمک شامل ہونا چاہیے. اور آپ یہ سوچو گے کہ نمک ایک ایسی چیز ہے جس کو بائبل میں اونچا مقام دیا گیا ہے. بائبل یہ کہتی کہ خداوند نے کہا یہ تمہارے بیچ میں ابدی عہد کے طور پر رہے گا. اب سوال یہ ہے، ہم تو نئے عہد کے لوگ ہیں، تو کیا ہم بھی اسی عہد کے ساتھ ہیں؟ جب بائبل کہتی کہ لازوال، جب بائبل کہتی لافانی، جب بائبل کہتی کہ ایور لاسٹنگ کووننٹ، تو اس کا مطلب ہے ہم بھی اس کے حصے دار ہیں. بائبل کہتی کہ اس عہد کا ہماری زندگی پر بھی اطلاق ہوتا ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیے گا کلام کے اندر گنتی کی کتاب اس کا 18واں چیپٹر اور اس کی 19 آیت کو پڑھیں گے. یہاں پر لکھا ہے گنتی کی کتاب 18واں چیپٹر اور اس کی 19 آیت میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، لیکن ان سبوں کو میں نے تجھے اور تیرے بیٹوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیا ہے. یہ خداوند کے حضور تیرے اور تیری نسل کے لیے نمک کا دائمی عہد ہوگا. کیا ہے بولیے؟ نمک کا دائمی عہد ہوگا. سب بولو آمین. ایک چیز مجھے بتائیے، ہمارے دسترخوان نمک سے خالی رہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. ہمارے دسترخوان ان کو ٹیسٹ دیتا ہے نمک. ہمارے کھانوں کو جو مزیدار بناتا ہے وہ نمک ہے. اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ بائبل یہ کہتی ہے کہ جب ایک آدمی خدا کے حضور میں پانچوں قربانیوں میں سے نظر کی قربانی پر عمل کرتا ہے تو اسے خدا کے سامنے اپنی خوراک، اپنا اناج لے کر جانا ہوتا ہے. خداوند نے کہا جس طرح تو اپنے دسترخوان کو نمک سے خالی نہیں رہنے دیتا، اسی طرح وہ دسترخوان جو تو میرے لیے لگائے گا وہ بھی نمک سے خالی نہیں رہنا چاہیے. بولو آمین.
आमीन। इसलिए कि जिस तरह हम फीकी चीजों को पसंद नहीं करते, खुदा भी उन चीजों को जिनमें हमें लुत्फ या हमें मजा नहीं आता, टेस्ट नहीं आता, खुदा भी उन चीजों को पसंद नहीं करता। यहां पर ये लिखा है, ऐ हारून कहा, ये मैं तुझे और तेरे बेटों को कुर्बानी के तौर पर देता हूं, और ये भी कहा, ये अहद तेरे और तेरी नस्ल के बीच में दायमी अहद होगा। अब याद रखो, यहां पर अब्रानी के दो अल्फाज आए हैं। यहां पर बैरिथ जो कवनेंट के लिए इस्तेमाल हुआ है, 1285 नंबर का ये लफ्ज है अब्रानी का, और 5769 नंबर का ये लफ्ज है ओलेम। ये अब्रानी के दो ऐसे अल्फाज हैं जो इस कवनेंट की अफादियत को, इस कवनेंट की वैल्यू को और भी ऊंचा करते गए। बाइबल ये कहती है कि ओलैम बैरिथ मतलब कि ये लाफानी है, ये कभी खत्म नहीं होगा। बाइबल कहती है कि ये पायदार है, ये कायम किया गया है, और इसे यहोवा खुदा ने दायमी अहद के तौर पर हमारे बीच में रखा है। और अजीजों याद रखो कि बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि जिस तरह दो लोग अपने बीच में, आप ये सोचो, जब लोगों के बीच में कोई कमिटमेंट तय पाती है तो क्या होता है, दस्तरखान नहीं लगता, उसको खाने पर बुलाया जाता है, उसकी खातिर तवाज़ा की जाती है। इसी तरह खुदावन ने कहा, वो चीजें जो तेरे और मेरे बीच में तय पाई जाएंगी, उसके लिए दस्तरखान का लगना जरूरी है, उसके लिए नमक का हमारे बीच में कायम होना जरूरी है। सो यहां पर जो अहबार, उसका 2 बाब उसकी 13वीं आयत के मुताबिक हमने ये पढ़ा है कि तमाम चढ़ावों को, तमाम नजरों को उसने कहा उनके अंदर नमक को शामिल करना। ये कहा गया कि वो नमकीन हो। और यहां पर सुनिएगा कि खुदावन ने कहा कि नजरें और कुर्बानियां जब तू मेरे हजूर में लाएगा, तो अगर वो कहा वो 5वीं कुर्बानी नजर की कुर्बानी के तहत है, तो उसने कहा इस चीज का बीच में जरूर उसे शामिल करना। और यहां ये सीखा जाता है कि बाइबल मुकद्दस जब अहूद की बात करती है, कवनेंट्स की बात करती है, तो यहूदीइज्म के कुछ ऐसे कवनेंट्स हैं जिनका आज भी चर्च को उनको फॉलो करना होता है, उन कवनेंट्स को आज भी चर्च को मानना होता है। उसमें से एक मैंने कहा इब्राहिमी अहद है। बाइबल उस वाहिद अहद को कहती वो ट्रांसफरेबल है, बाइबल कहती वो मुंतकिल होने वाला अहद है। और एक यहाँ पर हम यहाँ ये सीख रहे हैं, खुदावन ने कहा ये नमक का अहद है जो तुम्हारे बीच में कायम किया जाएगा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। अब मुझे ये बताइए, जब बाइबल इसे कहती है ये लाजवाल है, जब बाइबल कहती लाफानी है, ये कभी खत्म नहीं होगा, जब हम बाइबल के अंदर 2 चीजों को सीखते हैं, एक शैडो का जमाना और एक रियलिटी का। जो नया अहदनामा है वो शैडो नहीं है, वो क्या है, वो रियलिटी है। तो शैडो क्या है, वो पुराना अहदनामा जो 39 बुक्स पर मुश्तमिल है। अब ये याद रखो, जब शैडो की चीजें नए अहद में मुंतकिल हुई है, तो उन चीजों को रखा तो गया, लेकिन उनकी हालत को चेंज किया गया है। क्या किया गया, बोलिए, उनकी हालत को बदला गया है। एक वर्ष को पढ़ेंगे मेरे साथ, देखो कुलसियों का खत और उसका 2रा बाब, उसकी 12वीं आयत को पढ़ेंगे। कुलसियों का खत है और उसका हम पढ़ेंगे 2रा चैप्टर और उसकी 12वीं आयत के अंदर क्या लिखा है। और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और उसमें खुदावंद की कुव्वत पर ईमान लाकर, हाँ, जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। हाँ, 2 बाब की 12वीं वर्ष पढ़ी आपने, कुलसियों 2 बाब उसकी 12वीं वर्ष। ऐसा नहीं है बस खाने पीने या अहद या नए चांद या, हाँ 16वीं वर्ष जी, पढ़िए उसको। बस खाने पीने या हाँ, अहद या नए चांद या सफर की बाबत कोई तुम पर इल्जाम ना लगाए। हाँ जी, क्योंकि ये आने वाली चीजों का साया है, मगर असल चीजें मसीह की है। सब बोलिए आमीन। लिखा है ये आने वाली चीजों का साया है, मगर असल चीजें किसकी है, बोलिए, मसीह की है। अब बाइबल के अंदर शैडो और बाइबल के अंदर नया अहदनामा। अब नया अहदनामा असल चीजों पर मुश्तमिल है और पुराना अहदनामा साए पर, अक्स पर मुश्तमिल है।
मैं यहां पर ये कह रहा हूं, दूसरा बाब उसकी 16वीं वर्ष जो कुलसियों में पढ़ी गई, बाइबल ये कहती है कि अफजल चीजें मसीह की गए, लेकिन ये याद रखो कि वो अफजल चीजें जो मसीह की गए उनका शैडो के साथ पुराने अहदनामे के साथ तल्लक जरूर है। ऐसा नहीं है कि नए अहद की चीजें ही और हैं और उनका पुराने अहद के साथ तल्लक ही नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। पुराने अहद में बाइबल कहती है लोग बकरे बछड़े लाते थे, ये पुराने अहदनामे की बात है। अब नए अहदनामे की बात क्या है? हम अपने आप को खुदा के सामने नजर करते गए। आमीन। अब रोमियो के खत में लिखा है 12वें बाब की पहली आयत में, रोमियो का खत 12वां बाब उसकी पहली आयत में, बस ऐ भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए। ये रियलिटी है। शैडो में क्या था? बकरे बछड़े और तरह की ऐसी नजर की चीजें लाते थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब उन चीजों को देखते गए और अब की चीजों को देखते गए तो बाइबल ये कहती है उसकी हालत को बदला गया, उसका तरीकाकार बदला गया, लेकिन उसके पीछे नजरिया वो ही है। वहां पर बकरों को लाते थे, अब नया अहद कहता है कि तुम्हें अपने आप को नजर करना है। सब बोलो आमीन। बाइबल कहती है अपने आप को, यहां पर लिखा है याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी क्या है? बोलिए। माकूल इबादत क्या है? अपने आप को नजर कर देना। अब शैडो में माकूल इबादत क्या थी? बकरों बछड़ों को लाना। अब नए अहदनामे में माकूल इबादत क्या है? बोलिए। अपना बदन खुदा को नजर करना। अब ये तो बदला गया, लेकिन ये सोचो नमक, अब बाइबल ये कहती है उसको तो दायमी अहद के तौर पर रखा गया है। अब ये सोचो क्या जब हम अपने आप को नजर करते गए तो हम नमक का अपनी जिंदगी में इतलाक कैसे देखते गए, हम उसका इस्तेमाल कैसे देखते गए। हमने शैडो में देखा, हमने रियलिटी में देखा कि कुर्बानियों का तरीकाकार चेंज कर दिया गया है। पुराने अहदनामे में लोग अपना आप नजर करें ना करें लेकिन बछड़े देते थे। अब नया अहद कहता है बकरों बछड़ों की जरूरत नहीं है, अपना आप फकत खुदा को नजर कर दो। एक वर्ष को पढ़िए, मरकस की अंजील 9 बाब और उसकी 49 वर्ष को पढ़िए तो यहाँ पर नमक को किस तौर से नए अहदनामे ने लिया है इसको पढ़ेंगे। मरकस 9 बाब और उसकी 49 वर्ष को देखिए। क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा, हाँ, और हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की। सब बोलो आमीन। अब सोचो बाइबल क्या कह रही है, हर शख्स को कैसे नमकीन किया जाएगा? आग से। कैसे? बोलिए। अब याद रखो इंग्लिश लफ्ज जो आया है वो है फायर, कि तुम्हें फायर से सॉल्टी किया जाएगा। यूनानी लफ्ज उसके लिए 4442 नंबर का आया है, वो है पूर, जिसका मतलब है ट्रायल, कि तुम्हें आजमाइश में से गुजारा जाएगा, तुम्हें मुसीबत में से गुजारा जाएगा। मैंने कहा पुराने अहद में और नए अहद में चीजों के अंदर कैसे उनको बदला गया है। बाइबल ये कहती है कि तुम्हारे बीच में नमक का अहद वो कायमी अहद है, वो कायम किया जाएगा। और मैं ये कह रहा हूं कि जब हम नए अहद में आते गए तो नए अहद में ये तो नहीं कह सकते कि हमारा उसके साथ ताल्लुक ही नहीं है। जब बाइबल उसको कहती है अहद नहीं, ये दायमी अहद है, इसे कभी बदला नहीं जाएगा। और मैं कह रहा हूं जितने भी अहूद हैं बाइबल के अंदर, उनमें से सिर्फ 2 अहद ऐसे हैं जिनके साथ अबदी अहद इस्तेमाल किया गया है, एक इब्राहिम का अहद और एक नमक का अहद। और नमक के अहद के अंदर हम ये देखा है, बाइबल कहती है कुलसियों के खात्मे के पुराने अहद की चीजें क्या थी? वो साया थी, लेकिन नए अहद की चीजें क्या है? वो असल है। सब बोलो आमीन। अब मरकस की अंजील 9 बाब और उसकी 49 वर्ष कहती है हर शख्स को ट्रायल से, कैसे बोलिए, इम्तिहान से, आजमाइश से, मुसीबत से, लिखा है नमकीन किया जाएगा। इसका ये साफ मतलब है वो लोग जो परसिक्यूशन नहीं सहना चाहते, वो लोग जो अपनी जिंदगी में सताव या दुख या मुसीबत को फेस नहीं करना चाहते, बाइबल कहती है वो अपनी लाइफ में फीके गए,
बाइबल कहती है वो अपनी लाइफ में टेस्टी नहीं है। बाइबल ये कहती है वो अपनी लाइफ में इस अहद के साथ जुड़े ही नहीं है जिसको खुदा ने मुकर्रर किया है। ऐसा है? बोलिए, क्या इत्तेफाक करते हैं? आमीन। क्या लिखा है? क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा। इसका मतलब है कि नमक और उस नमक खुदा और उसकी उम्मत के साथ एक दाहिमी अहद के तौर पर यह काम करता है। अब नए अहद में जो मुसीबतें हम सहते हैं ये हमारी जिंदगी को, बाइबल कहती है, सॉल्टी बनाने के लिए, हमारी जिंदगी को नमकीन करने के लिए, और हमारी जिंदगी को बाइबल कहती है खुदा के उस मयार के मुताबिक चलाने के लिए ये हमारी हेल्प करते हैं। एक चीज मुझे बताइए, क्या जिंदगी में टेस्ट नहीं होते? पर मुझे बताइए, सभी टेस्ट में फेल करते हैं? टेस्ट तो हमारी लाइफ के अंदर प्रमोशन के लिए खुदा की तरफ से आते हैं, और वो लोग जो अपनी जिंदगी में टेस्ट से बचते हैं तो वो सारी जिंदगी छठी में रहेंगे, वो सातवीं में नहीं जाएंगे। सातवीं में वही जाएगा जो अपनी उस ट्रायल को, अपनी उस टेस्ट को पास करेगा और वो प्रमोशन पाकर आगे जाएगा। बाइबल मुकद्दस ये गवाही देती है आज के मसीहों को अगर मुसीबत लगती है तो वो सच में उनके लिए मुसीबत होगी। अगर वो दुख उनको दुख लगता है तो वो सच में उनको रुलाएगा। लेकिन अगर वो उस मुसीबत को अपने लिए इस नमक का अहद समझकर अपने लिए, मैंने कहा खुदा के इस मास्टर प्लान का हिस्सा अपने आप को समझकर लेंगे, प्रमोशन उनकी होगी, टेस्टिमनी उनकी होगी, गवाही उनकी होगी। आमीन। सब बोलो हालेलुया। सो रोमियो के खत में हमने ये पढ़ा है 12वें बाब की पहली आयत के मुताबिक लिखा है कि खुदा हमारे बदनों को चाहता है। अब जब हमारे बदनों को बतौरे वो कुर्बानी चाहता है तो मुझे बताइए हमारे बदनों के साथ वो नमक भी तो शामिल करेगा, क्योंकि उसने कहा तुम्हारे चढ़ावों के बीच में नमक हो, और कहा ये दायमी अहद के तौर पर होगा। हमने यहाँ पर ये पढ़ा है कि 39 बुक जो हैं पुराने एहदनामे की, वो सभी बुक्स शैडो हैं, वो एक अक्स हैं, लेकिन वो उस्ताद जरूर हैं, क्योंकि हमें उस शख्सियत के बारे में वो हमें बताती हैं। कहा यह जाता है कि बहुतों की तहरीक एक के लिए, और तहरीक पुराने अहद की, क्योंकि 40 मुसन्निफ हैं जो हमें बाइबल के तहरीक देते हैं यीशु मसीह के लिए, और 39 बुक्स हैं जो यीशु मसीह के बारे में हमें तहरीक देती हैं। और जब अब नए अहद में आते हैं तो नया ये अहद कहता है एक की तहरीक बहुतों के लिए और तहरीक नए अहद की, और वो तहरीक है बोलो यीशु मसीह की। सब बोलो हालेलुया, आमीन। तो बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि खुदा हमारे इन बदनों को लेगा नजर के तौर पर, लेकिन वो इसके साथ नमक जरूर शामिल करेगा। और वो नमक का काम हमारी जिंदगी के लिए क्या है? बोलो परसिक्यूशन। आमीन। बाइबल कहती है यहाँ पर पहला पत्रस उसका 4 बाब और उसकी 12वीं वर्ष को पढ़िए। पहला पत्रस उसका 4 बाब उसकी 12वीं वर्ष में क्या लिखा है? ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारे, लिखा है, आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, यह समझ कर उससे तज्जुब ना करो कि यह अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है। सब बोलो आमीन। बाइबल कहती है जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है उसके लिए तज्जुब ना करो कि ये तो कुछ अनोखा हमारे साथ हुआ है। मुझे बताओ, यीशु मसीह को दुख का सहना नहीं करना पड़ा? क्या दुख का सामना नहीं करना पड़ा? बोलिए, क्या नबियों को नहीं करना पड़ा? क्या शागिर्दों को नहीं करना पड़ा? सिवाय एक शागिर्द के, यूहन्ना, बाइबल कहती है जिसको रेवलेशन मिला, सिर्फ वो ही अपनी तबाही मौत मरा। बकाया सारे तो बाइबल कहती है किसी न किसी तरह से शहीद कर दिए गए। यहां पर हम ये पढ़ते हैं पहला पत्रस 4 बाब की 12वीं वर्ष में, ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग। अब यहां पर आग के लिए जो यहां पर यूनानी लफ्ज आता है, इंग्लिश में वही लफ्ज है फायर, और पत्रस ने यहां कहा कि जो तुम, उसने कहा प्रोसेस, जो यूनानी लफ्ज है उसका ये 3 तर्जमे के, ट्रायल, टेस्ट और कैलेमिटी। उसने कहा ये सब तुम्हें सहन करना पड़ेगा।
उसने कहा ये सब कुछ तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग मतलब जो ट्रायल में हो, जिस टेस्ट में हो, जो कैलेमिटी तुम्हारे साथ चल रही है, उसने कहा उन सब बातों के लिए तज्जुब ना करो कि ये कुछ अनोखा हमारे साथ हुआ है। अजीजों, याद रखो, जिस तरह पुराने अहद में कुर्बानी के साथ नमक लाने के साथ हम खुदा को अपने दस्तरखान में शरीक करते गए, उसी तरह हम अपने बदलों में परसिक्यूशन सह कर यीशु मसीह के साथ उसके दुखों में शरीक होते गए, क्योंकि उसने भी ये सब कुछ सहा। सब बोलो हालेलुया। आज मैं आपको सच बताऊं, अगर हमें अपनी मसीही जिंदगी के अंदर दुख सहना प्रिविलेज की बात नहीं लगती, हमें इस्तेहकाक या इज्जत की बात नहीं लगती, तो हमारे ऊपर दुख की बात है, अफसोस की बात है। क्योंकि इब्तदाई कलीसिया के साथ ऐसा नहीं था। इब्तदाई कलीसिया को जब जब दुख सहना पड़ता था, बाइबल कहती है उसके साथ खुशी से भी भरते थे, और वो कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स से वो घबराए नहीं थे। हम यहाँ पर ये सीखते गए, लिखा है ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की गए। आजमाइश के लिए हम ये पढ़ते गए, हमारे लिए आजमाया जाना जरूरी है। अब ये सोचो, जब सुनार किसी सोने को कुंदन बनाता है तो वो क्या करता है? उसे आग में नहीं डालता। और क्या हम कुंदन हैं? मैं ये कहता हूं, पैसे आने की वजह से, अच्छी पोजीशन होने की वजह से, घमंड, तकब्बर और लापरवाही, गफलत, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर जुड़ चुकी हैं। लेकिन अगर ये दुख हमें खुदा के करीब ले आए तो ये किसी बरकत से कम नहीं है। आमीन। मैं ये कह रहा हूं, ये दुख अगर हमें खुदा की सच्चाई और सदाकत की हकीकी पहचान दे दे, ये किसी खुदा की डिवाइन बरकत से कम नहीं है। हालेलुया। बाइबल का एक कोई किरदार बता दो जिसने दुख नहीं सहा। बाइबल का कोई एक ऐसा कोई कैरेक्टर बताओ जिसने प्रॉब्लम्स को फेस नहीं किया। सभी तो फेस करके आए हैं, क्योंकि खुदावन का ये पुराने अहद में ये वादा था, ये कवेनेंट था कि जितने तुम कुर्बानियां लाओगे, चढ़ावे लाओगे, उनमें नमक का होना जरूरी है। और नए अहद में मैं ये कह रहा हूं, हम अपने आप को, अपने परिवारों को खुदा के सामने नजर करते गए, वक्त करते गए, खुदा के लिए डेडिकेट करते गए। खुदावन, ये मेरा जीवन आज से तेरे लिए है। एक बात मुझे बताओ, मैं भी कहता हूं खुदावन मेरा जीवन तेरे लिए है। एक और आदमी जो दुनियादार है वो भी तो यही कहता है। ये कहने में क्या हर्ज है? लेकिन मुझे बताओ, ये दावा कब साबित होगा? जब परसिक्यूशन आएगा, जब प्रॉब्लम सहन करनी पड़ेंगी, जब मुसीबतें आएंगी, तो वो तो लौट कर जाएगा, क्योंकि उसे ये सब नहीं चाहिए। लेकिन जो इन चीजों को बर्दाश्त करके अड़ा और खड़ा रहेगा, कायम रहेगा, वो अपने दावे में खोखला नहीं पाया जाएगा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो कलाम खुदा ये कहता है कि अगरचे मुसीबतें बड़ी भारी और आतिशी हैं, मगर उनका मकसद मसीहों को तबाह करना नहीं है। हम ये पढ़ते गए, उनका मकसद मसीहों को, बाइबल कहती है, सॉल्टनेस देना है, उनको सॉल्टी बनाना है, उनको नमकीनी देना है, उनको नमकियात मुहैया करना है। हालेलुया, आमीन। सो 4:13 कहती है, जो हमने पढ़ी, पहला पत्रस 4:13 देखिए। पहला पत्रस 4:13 में लिखा है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो, क्या करो? खुशी करो। क्या दुख सहना खुशी की बात लगती है? क्यों जी? किसको लगता है? किसको मसीह में दुख सहना खुशी की बात लगती है? लोगों को दुख सहना, गॉड ब्लेस यू, कहिए कि हाथ उठे भी हैं, है ना? पर ऐसा नहीं होता। ज्यादातर लोग इस चीज से घबराते गए, छोड़कर जाते गए। यहां पर लिखा है, जैसे जैसे तुम मसीह के दुखों में शरीक होते हो, कहा खुशी करो। और मैं ये कह रहा हूं कि समाज में दुख सहना खुशी की बात नहीं लगती, दुख सहने की बात लगती है, रोने की बात लगती है। और इस जगह को सारे लोग कबूल नहीं करते। इस जगह को सारे लोग, बाइबल कहती है, कबूल अपनी जिंदगी में इसलिए नहीं करते कि लोगों को आराम व आसाइश चाहिए, लोगों को यहाँ सुख शांति की बातें चाहिए। एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, बाइबल प्रोस्पेरिटी का प्रचार करती है कि क्रूस का प्रचार करती है?
بتائیے آج کی کلیسیاؤں میں میں نے بڑے بڑے خادموں کو پروسپیرٹی پر کلام سناتے دیکھا، صرف پیسے کی بات، صرف پیسے کی بات، صرف خوشحالی کی بات۔ کیا مسیح میں ہم خوشحالی پانے کے لیے آتے ہیں کہ دکھ اٹھانے کے لیے آتے ہیں؟ بولیے، ہم مسیح میں دکھ اٹھانے کے لیے آتے ہیں۔ اور بائبل یہ کہتی کہ اگر ہم دکھ سہنے کو تیار ہیں وہ ہمیں اجر دینے کو تیار ہے، کیونکہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ قربانی کا اجر ملتا ہے۔ اگر میں اپنے جذبات کو، اپنی فیلنگ کو، اپنی خواہشات کو، اپنے جیون کو قربان نہیں کر سکتا وہ کبھی اجر نہیں دے سکتا۔ عزیزو، بائبل کی یہ گواہی ہے کہ اس عہد کو کلیسیاؤں کے اندر قائم کیا گیا ہے۔ اگر ہم دکھ سے بچنا چاہتے ہیں، اگر پرابلم سے بچنا چاہتے ہیں، ہم کبھی بھی اپنے آپ کو، یاد رکھو، نظر نہیں کر پائیں گے، خدا کے لیے وقف نہیں کر پائیں گے۔ اور یہاں یہ یاد رکھو، ہماری زندگی میں کبھی بھی خدا اس نمکینی کو پیدا ہی نہیں کر پائے گا، کیونکہ یہ تب پیدا ہوگی جو مرکز کی انجیل میں پڑھا گیا، کیونکہ ہر شخص آگ سے، وہاں پر قربانیاں کیسے نمکین ہوتی تھیں؟ نمک سے۔ اور ہمیں خدا کیسے نمکین کرتا ہے؟ آگ سے۔ تو آگ کا یونانی ترجمہ بنتا ہے ٹرائل، مطلب ہمیں آزمائش، ہمیں امتحان۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہر طرح کی ان مصیبتوں کو اپنی زندگی میں سہنا پڑے گا، تبھی جا کر ہم خدا باد کی بادشاہی کے حصے دار بن پائیں گے۔ اونچی آواز میں بولیے آمین۔ سو بائبل مقدس اس بات کے لیے گارنٹی دیتی ہے کہ اگر ہم اس کے دکھوں میں شریک ہوں گے، اس کے ساتھ جلال میں بھی شریک ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ اس کے ساتھ جلال میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو یہ راستہ کلوری سے جائے گا، یہ راستہ گھاٹیوں وادیوں سے ہو کر پہاڑوں تک پہنچے گا۔ آمین۔ وہ دکھ یاد رکھو، آپ کی بیماری کے تعلق سے ہو سکتے ہیں، آپ کے پیسے کے تعلق سے ہو سکتے ہیں۔ اب ضروری ایسا نہیں ہے کہ لوگوں میں قید میں ڈال دیں یا یسوع مسیح کی وجہ سے ہمیں باندھ دیں۔ ہر ایک آدمی کا کیس الگ ہے۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، اگر دنیا میں سب شکلیں ایک جیسی ہوتی دنیا بور ہو جاتی ہے نا، تو کیس بھی اگر سب کے ایک ہی جیسے ہوتے تو دنیا بور ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کسی کی اولاد کی پرابلم ہے، کسی کے ہسبینڈ کی پرابلم ہے، کسی کی وائف کی پرابلم ہے، کسی کے بزنس کی پرابلم ہے، کسی کو بیماری کی پرابلم ہے، کسی کو کیریئر کی پرابلم ہے۔ ہر ایک آدمی کا کیس الگ الگ ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اپنے امتحان میں ایسا چلو کہ آپ پاس ہو کے آگے پرموشن تک جاؤ اور خدا آپ کو اجر اور جلال کا آپ کو وارث ٹھہرائے۔ ہاللیلویا۔ سب بولو ہاللیلویا۔ اس لیے تو پالوس نے کہا ہے کہ یہ ننگا پن، اس نے کہا یہ بھوک، اس نے کہا بھائیوں کی مخالفت، اس نے کہا یہ سب چیزیں مجھے مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ ہاللیلویا۔ اونچی آواز میں بولو ہاللیلویا۔ جبکہ ہم یہاں پر یہ پڑھتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا کا حال کچھ اور تھا، اور وہ یہ تھا، یہاں پر اعمال 5 باب کی ہم 41 ورس کو پڑھیں گے۔ 5 کی 41 ورس کو دیکھیے، اعمال 5 کی 41 کو لکھا ہے، پس عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس کے نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے، ہم اس کے نام کی وجہ سے بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے۔ اور بائبل کہتی کیا وہ رنجیدہ ہوئے، کیا انہیں دکھ کیا، کیا وہ پریشان ہوئے، کیا وہ بے دل ہو گئے؟ لکھا ہے ان لوگوں نے خوشی کی۔ کیا کی بولیے؟ ان لوگوں نے خوشی کی، کیونکہ ان کو جلال میں داخل ہونے کا سیکرٹ پتا تھا کہ ہم اگر یسوع مسیح کے راستے پر چلیں گے۔ ایک چیز مجھے بتائیے، زمانے نے جو سلوک یسوع مسیح سے کیا، نبیوں سے کیا، رسولوں سے کیا، آپ توقع کر سکتے ہو کہ یہ زمانہ ہم سے ویسا سلوک نہیں کرے گا؟ کیا ایسا ہم توقع کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں توقع کر سکتے، کیونکہ یسوع نے کہا مجھ ہرے درخت کو انہوں نے نہیں چھوڑا تو تمہارے ساتھ یہ کیا کچھ نہیں کریں گے۔ اپنی زندگی میں یاد رکھو، مسیح میں جب ہم آتے ہیں تو دکھ سوچ کر آئیں گے۔ اگر پروسپیرٹی سوچ کر آئیں گے
कामयाबी सोच कर आएंगे तो मेरा ख्याल है फेल होकर वापस जाएंगे। इसलिए मैं ये कहता हूं कि मूसा को शैतान नहीं रोक पाया क्योंकि उसके हाथ में कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं थी, है ना। वो तो डॉलर्स बो कर आया है, वो तो पोजीशन बो कर आया है। आज एक क्रिश्चियन को शैतान क्यों रोकता है? क्योंकि वो उसके हाथ में जब प्रेयर रिक्वेस्ट देखता है कि मुझे खुदा कामयाबी चाहिए, ये नहीं कि वो दे नहीं सकता, लेकिन वो तरीका बताता है कि कामयाबी तुझे वादियों से होकर मिलेगी। और मैंने कहा जब वो हमारी जिंदगी में ऐसी चीजों को देखता है उसे हमें पकड़ने में मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हम मसीह में खुशहाली सोच कर आते हैं। हम साधु सुंदर सिंह के बारे में पढ़ते कि उसने कहा मसीह में दुख सहना मेरे लिए इज्जत की बात है, और यहां पर भी ये पढ़ते हैं हमारे 5:41 में लिखा, रसूलों ने कहा हम मसीह के नाम की वजह से बेइज्जत होने के अहल तो ठहराए गए। उन्होंने खुशी की कि हम अब उस लेवल पे आ चुके हैं, और जब उस लेवल पे गए हमें सताव सहना पड़ रहा है, हमें बेइज्जत किया जा रहा है, वो खुश इसलिए थे क्योंकि वो उम्मीद में आ चुके थे कि हम जलाल में दाखिल होने के काबिल हो चुके हैं। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर ये सीखा जाता है कि कलाम सिखाता है कि रसूल इजराइलियों के जो पक्की फरीसे थे, आप अमाल की किताब में पढ़ लो, उन्होंने कई बार उनको डराया धमकाया, उन्होंने कई बार उनको हवालात में बंद कर दिया। मैं एक ममसू को सुन रहा था, उन्होंने कहा जब इब्तदाई कलीसिया ने खिदमत को शुरू किया तो उनके रास्तों में अगर मुसीबतों के पहाड़ खड़े हुए तो उन्होंने या तो उस मुसीबत को ऊपर से चढ़ के पार कर लिया, या वो लेफ्ट साइड से गुजर गए या राइट साइड से गुजर गए, या उसी के बीच में से वो चीर के रास्ता बना के गुजर गए, लेकिन वो रुके नहीं। और अगर वो रुक गए होते, आज मेरे और आपके हाथ में बाइबल ना होती, हम इस जगह पर ना होते, तो ये सोचो उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, और हम, मैंने कहा, कुर्बानी करने से इज्तनाब करते गए, गुरेज करते गए, जबकि बाइबल कहती है तुम्हारे लिए शायद स्टडी अजर न जारी करे, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी वो खुशहाली, ये सब चीजें तुम्हें अजर के अहल बनाए ना बनाए, लेकिन अगर खुदा तुम्हारे लिए अजर को जारी करेगा तो वो बाइबल कहती है किसी चीज कि ना अहली भी उसे रोक नहीं पाएगी। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। दूसरा तिमोथियस उसका 3 बाब उसकी 12वीं वर्ष को पढ़िए। दूसरा तिमोथियस उसका 3 बाब उसकी 12वीं वर्ष में। हालेलुया। हमने शैडो में नमक के अहद को कैसे नए अहद में जाते और उसका कलीसियाओं पर इतलाक होते देखा, और यहां पर दूसरा तिमोथियस 3 बाब की 12वीं वर्ष में लिखा है, बल्कि जितने मसीह में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं क्या होगा? वो सब सताए जाएंगे। दीनदारी की जिंदगी जीना चाहते हैं? हाँ, हम जीना चाहते हैं। अब उसके लिए शर्त क्या बाइबल ठहराती है? क्या कंडीशन है? कि तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हें दुख सहना पड़ेगा। बाइबल याद रखो, हेवन में जाने का कोई और रास्ता नहीं बताती, जलाल में दाखिल होने का कोई और रास्ता नहीं बताती। वो बरकतें जो खुदा ने आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए हेवन में प्लान की हुई हैं, उनमें दाखिल होने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्रूस का रास्ता है। अगर आप क्रूस उठाने को तैयार हो, वो आपको जलाल देने को तैयार है, वो हमें अजर देने को तैयार है। आमीन। अपनी प्रॉब्लम्स को देखकर मसीही जीवन जीना छोड़ मत दो। मैंने कहा अपने दुखों को देखकर अपनी प्रेयर लाइफ को मत छोड़ दो। मैंने कहा अपनी मुखालफत को देखकर अपना मसीही जीवन जीना मत छोड़ दो, क्योंकि ये चीजें हमारी हेल्प करती हैं हमें फायर देने के लिए। मैं आज बल्कि कल रात ये याद कर रहा था, मुझे ये बताइए, अगर हमारे मुल्क के सारे पुलिस वाले घर चले जाए तो उसका सबूत क्या होगा? कि हमारे दुश्मन सारे मर गए, हमारे सारे दुश्मन मर गए, और सारे पुलिस वाले घरों में आके सोएंगे, पिकनिक मनाएंगे, वो आराम करेंगे। लेकिन मुझे बताइए, उनके अंदर वो अलर्ट रहना वो तो खत्म हो जाएगा।
खुदा अगर हमारी जिंदगी के सारे दुश्मनों को खत्म कर देगा तो मुझे बताओ हम अपनी दुआया लाइफ नहीं खो देंगे, है ना? कौन करेगा दुआ? भाई किसी ने चर्च नहीं आना, है ना? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई ना कोई धूनी साड़ी लाइफ च लगी है, चाहे वो बीमारी दी शक्ल च, चाहे किसी प्रॉब्लम दी शक्ल च, तो उसे ये समझो कि वो हमें फायर देने के लिए है, वो हमें एक्टिव करने के लिए हैं, वो हमें जागता बनाने के लिए हैं, वो हमें अलर्ट करने के लिए है। इसलिए तो याद रखो, अपने दुश्मनों के लिए भी शुक्रगुजारी करो कि वो है और आप सावधान है, आप सोए नहीं है। अगर वो ना होते हम कब के सोए होते, है ना? इसलिए बाइबल के अंदर ये सीखते गए, रसूलों ने ये जाना कि अगर ये हमें दुख सहना पड़ रहा है इनकी वजह से, तो ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये तो हमें अलर्ट कर, इन्हीं की वजह से तो हमारी दुआया लाइफ चल रही है। और यहाँ पर ये बताया गया कि जितने मसीह में दीनदारी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं उनके लिए एक ही शर्त है कि उन्हें नमक के अहद से गुजरना पड़ेगा। आमीन। अब मुझे बताओ, नए अहद में नमक का अहद क्या है? परसिक्यूशन। क्या है बोलिए? परसिक्यूशन। ये नमक का अहद है, क्योंकि बाइबल इसे प्रूव करती है कि आग से तुम्हें नमकीन किया जाएगा। और यहां हम ये पढ़ते हैं कि अगर दीनदारी चाहिए, हमें माकूल इबादत चाहिए, हमें अजर चाहिए, उसने कहा दुख सहने को तैयार हो तो आओ, उसने कहा सताव सहने को तैयार हो तो आओ। इसलिए बड़ा मुश्किल लगता है इस चीज को एक्सेप्ट करना कि बाइबल प्रोस्पेरिटी का प्रचार नहीं करती, बाइबल दुख का, बाइबल मुसीबत का, बाइबल क्रूस का प्रचार करती है। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा था, जितने मेरे पीछे आना चाहते हो, कहा तुम्हें हर रोज अपनी सलीब उठाना पड़ेगी। एक आखिरी वर्ष को पढ़ेंगे, अमाल 14 की 22 को, अमाल 14वां चैप्टर उसकी 22 वर्ष को पढ़िए। अमाल की किताब 14वां चैप्टर और उसकी 22 वर्ष को देखो क्या लिखा है। और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे जरूर है कि हम बहुत मुसीबतें सह कर खुदा की बादशाही में दाखिल हो। इससे बड़ी कोई सदाकत है बोलिए? क्या इस सदाकत से हम इनकार कर सकते हैं कि नहीं, दुखों के बगैर भी जाया जा सकता है? हम यहां पर ये पढ़ते हैं कि जरूर है हम मुसीबतें सहकर आसमान की बादशाही में दाखिल हो। अजीजों, मेरी ये दुआ है आपकी मुसीबतें आपको रोक ना पाए। आमीन। ये मेरी दुआ है कि आपकी प्रॉब्लम्स आपको डिस्करेज ना करें। मैंने कहा ये मेरी दिल से दुआ है खुदा का खादम होने के नाते कि आपके रोने के दिन आपको बेदिल ना कर दे। आमीन। आप फायर से भरो, खुदा के ग्रेस से भरो, और जो नबियों ने, जो रसूलों ने, जो यीशु मसीह ने सिखाया वो हम सब कर पाए। हाथ उठाकर बोलो आमीन, हालेलुया। लिखा है शागिर्दों के दिलों को मजबूर करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो। तो मोतियस के खत में लिखा है कईयों के ईमान का जहाज गर्क हो चुका है ना? हमें बाइबल में के अंदर कई ऐसे लोगों का भी जिक्र पढ़ते हैं जिन्होंने मुसीबतों के करके अपने मसीही ईमान को खो दिया। आप यूहन्ना के बारे में जब पढ़ते हो, यीशु मसीह ने यूहन्ना के बारे में लिखा है, कहा कि अच्छा होता कि वो मेरे सबब से ठोकर ना खाता। जब यूहन्ना के शागिर्द आए यीशु मसीह से ये पूछने के लिए कि तू वही है या हम किसी और का राह देखें, अब मुझे बताओ ये यकीन की स्टेटमेंट है कि बेयकीनी की है? ये बेयकीनी की है। ये वही यूहन्ना था जिसने कहा था ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। तब परसिक्यूशन नहीं था, और जब परसिक्यूशन आया और वो हवालात में था, और बाइबल ये बताती है इसने लिखा है अपने डिसाइपल्स को भेजा और ये कहा, इन बच्चों को बैठा लीजिए प्लीज, और ये कहा जाकर उससे पूछो आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। और यीशु मसीह ने वाज़ेह कहा
अच्छा होता कि वो मेरी वजह से ठोकर ना खाता। इसका मतलब वो ठोकर खा चुका था। मैं कई बार ये कह चुका हूं, अगर पतरस को कैद से छुड़ाया गया, अगर पालू सिलास को कैद से छुड़ाया गया, तो क्या यूहन्ना को नहीं छुड़ाया जा सकता था? छुड़ाया जा सकता था, लेकिन अगर वो फेथ में होता तो लिखा है पुराने अहद में कि रास्तबाज ईमान से जिंदा रहेगा। और मैं यहाँ इस वर्ष में ये कह रहा हूं कि बाइबल कहती है शागिर्दों के दिलों को मजबूत इसलिए वो करते रहे कि उन्हें पता था मुसीबतों की वजह से इनका ईमान कमजोर पड़ जाएगा, ये बेदिल हो सकते हैं, ये डामाडोल हो सकते हैं, ये चलना छोड़ देंगे, लेकिन उन्हें वो मजबूत करते रहे। अजीजों, जिस लेवल की मुसीबतें यीशु मसीह ने या ओल्ड टेस्टामेंट के नबियों ने या रसूलों ने सही हैं, उस लेवल की मुसीबतें हमने नहीं सही, लेकिन ये सोचो कि वो तब भी नहीं रुके और हम एक दुआ को कबूल ना होते जब देखते हैं अगली दुआ करना छोड़ देते हैं। मैंने कहा जब गवाही नहीं बनते देखते हम चर्च आना छोड़ देते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आई टाइट होना छोड़ देते हैं, खुदा के साथ वफादार रहना छोड़ देते हैं। हमारे ऊपर तो उस लेवल की प्रॉब्लम्स नहीं आई है। अजीजों, ये एक ही लेवल है नए अहदनामे के लिए और पुराने अहदनामे के लिए। कहा उनकी कुर्बानियों को मैं नमक से नमकीन करता था, लेकिन नए अहद को उनका मैं मुसीबतों से और दुखों से नमकीन करूंगा। और जितने लोग इस तरह से नमकीन होकर आएंगे, जिस तरह पुराने अहदनामे में लोग दस्तरखान पर शरीक होते थे, ये मेरे जलाल में शरीक होंगे। सब बोलो हालेलुया। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जब खुदा हमारी जिंदगी के अंदर, मैंने कहा सॉल्टनेस पैदा करने के लिए कोई प्लान बनाए, हम उसे पूरे तौर पर करने दें। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है कि खुदावन का ये प्लान है कि जितने दीनदारी की लाइफ जीना चाहते हैं, आपकी दीनदारी, मेरी दीनदारी, हम सब की बाइबल कहती गॉडलीनेस वो परखी जाएगी, उसे नापा तोला जाएगा। अगर वो उस लेवल पर आएगी तो वो हमारी दीनदारी पर वो उसकी तस्दीक करने के लिए वो तैयार रहेगा। आइए अपने सर झुकाइए। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया।